Hello, my dear student of Standard 7th, and welcome to you. And you are surprised to see that I am going to do chapter number 2, Motion of the Earth, part 1 of 2. There might be thought coming in your mind that why chapter number 2? Your tests are near, and on my YouTube channel, chapter number 2 is not there. There are few students those who had request me that sir, we don't find your YouTube channel, and the earlier videos were deleted. So for the recording purpose, I am thinking that okay, only chapter number 1 thoroughly discussion and question answer pending. Chapter number 2 question answer I had discussed, only the explanation part is remaining. So I am going to explain chapter number 2, and then after it I am going to explain chapter number 1 as well as their question answer also. And our syllabus for standard 7 will be going to be completed for the first terminal exam, or you can say half yearly exam, whatever the government or school will decide. That is up to them. My job is to complete syllabus semester 1 book, and that I have already completed. It might be revision kind of thing for you. Okay, so without any delaying any time, let's begin. So the name of the chapter is Motion of the Earth, and forget about the motion of the Earth. Just focus over here. See, just focus on this part. Here, what is written? Motion of the Earth. So basically, we are going to discuss only two things: rotation and revolution. Now, what is rotation? What is revolution? That is the other matter. But these are the main two key points of the chapter that you are supposed to remember. Okay, so let me remove all this marking side. Um Now, so we are going to see rotation, that is moving on its axis. Okay, अर्थ जो ऐसे से घूमता है ना, 24 आवर्स में डे फॉर्म होता है, डेट इज कॉल्ड रोटेशन. एंड रिवॉल्यूशन, जो सन के चारों तरफ अपना जो अर्थ घूमता है, डेट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन. ओके, सिंपल आपको इतना याद रखना है, रोटेशन अर्थ का 24 आवर्स में होता है, एंड रिवॉल्यूशन विल टेक्स 365.25 days. Okay, so let's begin. And here I am going line by line. Okay, so आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए. So let's begin. Have you noticed that the toy that you play with such as top or disc rotate on their own axis? Similarly, our Earth too rotates on its axis. You must have taken a ride Ferris wheel fair. While setting the rotation around their axis, they also revolve in a circular manner. Likewise, other celestial bodies, Earth also moves in two ways, rotation and revolution. Okay, so आप लोगों ने बचपन में लट्टू या टॉप, जिसको हम लोग गुजराती में भंबेड़ा भी कहते हैं, वो खेला ही होगा. ओके, दूसरों का तो पता नहीं, बट वो जो भंबेड़े को घुमाते हैं, हाथ में उठाना होता है, वो मुझसे मैं बहुत लेट सीखा था. आई थिंक 7 साल जो डायरेक्टली हाथ में ले रहा होता है, वो तो मैं जल्दी सीख गया था. एनी हाउ, सो हम लोग भंबेड़े को, टॉप को, लट्टू को छोड़ के हमारे टॉपिक पे आते हैं. जिससे लट्टू एक जगह पे स्टिल होकर गोल गोल घूमता है, वैसे हमारी अर्थ भी गोल गोल घूमती है. बट हाँ, अर्थ का एक रोटेशन 24 आवर्स लगते हैं. आप में से ये जो नीचे पिक्चर दिया हुआ है, इस तरह के झूले में आप भी कभी बैठे होंगे, एंड ये भी मतलब गोल गोल घूमता ही रहता है. यही नहीं, हमारे जो यूनिवर्स में जो सोलर सिस्टम की बात करें तो सारे प्लैनेट्स लगभग गोल गोल ही घूमते हैं. ओके, कुछ की स्पीड बहुत कम है तो कुछ की स्पीड ज़्यादा होगी. ओके, नाउ तो अर्थ के बेसिकली दो मोशन है, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस एंड ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन. तो अर्थ अपने रोटेशन तो करता ही है, मगर वो सन के चारों तरफ भी घूमता है. बट हाँ, इतना फ़र्क है, रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं,
एंड रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 365 थर्ड टाइम ये पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ. आई डोंट नो वाई. एनी हाउ, द मून एंड द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन. ओके, सो मून भी कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, अर्थ भी मोशन में रहता है, एंड सन भी मोशन में रहता है. ओके, सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं. नाउ इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड. आपको एक पिलर खड़ा करना है. नोट डाउन द डिटेल्स एज गिवन इन द टेबल. ओके, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मैं ज़रा एक मार्कर ले लेता हूँ तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा. सी, ये है हमारा बर्ड. ओके, ये जो हमारा ये है, ये बर्ड है, एंड ये एक पिलर पे बैठा हुआ है. अब इमेजिन करो पूरा दिन ये पिलर पे बैठा हुआ है और हमारा सन राइज होता है यहाँ से. तो उसका जो परछाई, ओके, सन राइज होगा तो उसकी जो शैडो है वो कहीं ना कहीं फॉर्म्ड होगी. ओके, अगर सन यहाँ पर है तो इमेज अपोजिट साइड फॉर्म्ड होगी. एंड वैसे ही सन की अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पे उसकी जो शैडो होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में फॉर्म होंगी. अगर मैं यहाँ पर हूँ और मेरे सामने से सनराइज होगा तो मेरा अगर मैं खड़ा हूँ और ईस्ट में सनराइज हुआ तो मेरा शैडो कौन सी डायरेक्शन में होगा, वेस्ट में होगा. वाइस वर्सा, उल्टा कर देते हैं. शाम को जब सन सेट वेस्ट में होता है और मैं खड़ा हूँ तो मेरा शैडो कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट में होगा. इन द आफ्टरनून समवेयर ओवर हियर शैडो बिल्कुल बिलो द लेग्स होगा. है ना, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा. काफ़ी कलरफुल स्लाइड बन गई है. ओके, सो आपको क्या करना है, आपका शैडो कितना बड़ा है, जो पिलर की जो परछाई है वो कितनी लंबी दिख रही है, डेट यू आर सपोज टू कैलकुलेट. ओके, आई डोंट थिंक ये कोई एक्टिविटी करने वाला है, बुक में पता नहीं क्यों दे देते हैं. नाउ हियर एज यू कैन सी डिटेल्स, अराइविंग इन स्कूल, ड्यूरिंग द शॉर्ट रिसेस, ड्यूरिंग द लॉन्ग रिसेस. अच्छा, दो रिसेस भी होती हैं. डिपार्चर फ्रॉम स्कूल, टाइम, डायरेक्शन एंड लेंथ ऑफ अ शैडो. सो आपको वो पिलर जो था, आपको स्कूल जब आप जाते हो तब उसको करना है. वेल, बेसिकली इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही रिसेस होती है, बट देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पे दो रिसेस होती है. एक शॉर्ट रिसेस होती है फॉर द रिफ्रेशमेंट, चाय वाय पी लेते होंगे आई थिंक, एंड एक लॉन्ग रिसेस होती है जिसमें खाना वाना ही खाते होंगे सब ऑफकोर्स, एंड डिपार्चर ऑफ द स्कूल. तो आपको वो सारे टाइम रिकॉर्ड करने हैं. अच्छा, वो आपका शैडो कौन सी डायरेक्शन में फॉर्म हुआ वो डायरेक्शन लिखने हैं, प्लस उसका लेंथ कितना था. वेल, उसके लिए तो आपको मेजरमेंट टेप की जरूरत पड़ेगी. सो चलो, ये तो थी बकवास बातें. अब आते हैं मेन टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन. एंड इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू डिस्कस द रोटेशन. आगे हम लोग रोटेशन के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, एंड जो नीचे आप देख रहे हो रिवॉल्यूशन, वो होगा हमारा नेक्स्ट पार्ट, डेट इज द पार्ट नंबर 2. सो बेसिकली आपको आइडिया आ गया है कि अभी हम लोग रोटेशन जो है वो हमारा मेन टॉपिक है. रेडी? व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन्स. अर्थ का रोटेशन का मतलब क्या होता है. एज द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स इमेजनरी एक्सिस, द स्पीड ऑफ रोटेशन एट एनी पॉइंट अलोंग द इक्वेटर. इक्वेटर क्या होता है, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर. इट्स अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर. द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. जो मैं बार बार बोल चुका हूँ, हमारा अर्थ एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है. अच्छा, हमारा जो अर्थ है, मैं आपको ये थोड़ा मार्कर से अच्छे से समझा पाऊँगा. सी, हमारा अर्थ यूजुअली राउंड शेप में, ये इतना परफेक्ट राउंड नहीं है, बट हमारे अर्थ के सेंटर में से एक इमेजिनरी लाइन पास ऑन होती है जिसको हम लोग कहेंगे इक्वेटर, है ना.
तो जब हमारा अर्थ घूमता है ना, तो सेंटर से अगर हम उसकी स्पीड नापेंगे ना, तो वो बन जाती है आपकी 1670 किलोमीटर पर आवर। ओके, सो ये उसकी बेसिकली स्पीड है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। एक बार फिर से, अर्थ अपने इमेजनरी एक्सिस पे रोटेट करता है एंड उसकी जो इक्वेटर से उसकी स्पीड कुछ 1670 किलोमीटर पर आवर बनती है एंड हमारे अर्थ को एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं, डेट यू आर सपोज टू रिमेंबर। वाई इज द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड मून एट द नाइट। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि सन सिर्फ दिन में ही क्यों दिखता है, रात में क्यों नहीं दिखता है? अरे मून सिर्फ रात को ही क्यों दिखता है, दिन में कहाँ जाता है? ओके ये क्वेश्चन है, इसके आंसर्स हमको आगे मिलने वाले हैं, डोंट वरी, जस्ट स्टे विद मी। हाउ आर डे एंड नाइट कॉज, तो दिन या रात कैसे होते हैं? अगेन ये भी एक मैटर है, आगे डिस्कस करते हैं। यू मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चंस। ये बेसिकली कभी ना कभी हमारे दिमाग में ये इस टाइप के क्वेश्चन से आए ही होंगे। ओके, सो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का आंसर है, वो क्वेश्चन का आंसर भी दे देता हूँ लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ। सी ये हमारा सन है, ओके, ये वाला। अब ये जो हमारा अर्थ है ना, जो ये राउंड शेप में, अब ये जो अर्थ है और आप जो वो बीच में सेमी सर्कल जो आर्क देख रहे हो, वो जो पार्ट है वो वाइट है। क्यों वाइट है? बिकॉज इट फेसेस द सन एंड व्हेन द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, तो वहाँ पे क्या होगा? डे ही होगा ऑफकोर्स। ओके, एंड वो जो लाइन के उस तरफ वाला पार्ट है, स्पेशली दिस पार्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट है, वो ब्लैक कलर में दिखाया गया है। सो उसको ब्लैक कलर क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है, तो वहाँ पे क्या होगी? नाइट होगी, है ना। सो एंड नाइट वाले पार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है? सन देखने को स्टार्स देखने को मिल रहे हैं एंड मून देखने को मिल रहा है। सो ऐसा ही होता है। तो जो अर्थ का जो पार्ट सन को फेस करता है, डे हैपन, एंड द पार्ट विच इज नॉट फेसिंग द सन, ऑपोजिट ऑफ द सन, वी कैन से नाइट। अब एक्चुअली होता क्या है, हमारा अर्थ धीरे 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 घूमता रहता है ना, धीरे 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 घूमता रहता है। तो कुछ पार्ट है, अब वो सन के सामने से हट के डार्क वाले पार्ट में चला जाएगा। सो वहाँ पे क्या हुआ? शाम से रात हो गई। एंड कुछ पार्ट ऐसा होगा जो डार्क पार्ट से अब सन वाले पार्ट में आ जाएगा, सन के सामने आ जाएगा, तो वहाँ पे क्या है? मॉर्निंग है। एंड स्पेशली दिस पार्ट जो सेंटर में है, वो क्या होगा? वहाँ पे तो बिल्कुल आफ्टरनून होगा। एंड ये जो पार्ट है, ओके, जो अभी डार्क लाइट पार्ट में, वो जो डार्क में चला जाएगा, वहाँ पे नाइट हो जाएगी। एंड ये जो पार्ट है, जो नाइट वाला पार्ट है, अब ये जब डार्क वाला पार्ट है, अब ये लाइट में आ जाएगा, तो वहाँ पे मॉर्निंग होगी। तो इसीलिए अर्थ पे डे एंड नाइट फॉर्म होता है, बिकॉज उसकी रोटेशन की वजह से। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। गॉट इट। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जो हमको कंप्लीट करनी है। एक्टिविटी में एक क्वेश्चन, हमको कुछ कहा गया है। सो अगेन मैं वो मार्कर ले लेता हूँ एंड लेट्स सी। टेक अ ग्लोब। ओके, ग्लोब इज अ बेसिकली एक मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, जिसमें मतलब पूरी अर्थ का एक हम लोग एक रेप्लिका तैयार करते हैं। शट द डोर, आपको दरवाज़ा बंद कर लेना है। एंड विंडो ऑफ द क्लासरूम, सो आपको ये बेसिकली क्लासरूम के सारे दरवाजे प्लस विंडोज, खिड़कियाँ आपको क्लोज करनी है, सो डैट देयर इज अ डार्कनेस। ओके, सो डार्कनेस हो जानी चाहिए। ओके, सो इल्यूमिनेट द ग्लोब विद द टॉर्च, आपको एक टॉर्च लेनी है और आपको ग्लोब के पार्ट को फोकस करना है। लाइट उसमें मतलब लाइट फेंकनी है। यू हैव टू थ्रो द लाइट ऑन द ग्लोब विद द हेल्प ऑफ टॉर्च। द पार्ट विच इज lit signifies the day
एंड द डार्क हाफ सिग्निफाइज नाइट। ये आपकी टॉर्च हो गई, बराबर, और ये आपकी ग्लोब हो गई। आपने क्या किया, डार्क रूम में टॉर्च को ऑन कर दिया। अभी जो आधा पार्ट है ना, इस तरफ वाला राइट साइड वाला, वहाँ पे टॉर्च की लाइट है, मीन्स वो क्या है, डे है। एंड जो ये वाला पार्ट है ग्लोब का, जो बिल्कुल डार्क है, इसका मतलब क्या हुआ, डेट, कि वहाँ पर नाइट है। गॉट इट। आई थिंक अब तो आपको कोई भी डाउट मन में होना ही नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एंड दिस इज अवर द लास्ट स्लाइड ऑफ द डे, एंड दैट इज, अगर नाउ इफ इट इज डे टाइम, आई थिंक इमेज को थोड़ा ऊपर ले लेना चाहिए। यस, इफ इट इज अ डे टाइम इन इंडिया, मान लेते हैं कि इंडिया में अभी डे टाइम है, ओके, राइट वेदर इट वुड बी डे और नाइट इन द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपको यहाँ पे कुछ नीचे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज दिए हुए हैं, ओके, एंड ये 6 कंट्रीज में दिन है कि रात है, पर अपने को पहले ये एज्यूम करना है कि इंडिया के अंदर अभी डे है, ओके। अच्छा, तो द फॉलोइंग कंट्रीज गिवन इन द टेबल। सो चलो भरते हैं, और क्या कर सकते हैं टेबल में, इन्होंने इतनी मेहनत से टेबल बनाया है, टेबल को भरते हैं। कनाडा, यहाँ पर डे है तो कनाडा में अभी नाइट होनी चाहिए, तो यहाँ पे एन लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एन नहीं लिखा, मेरे राइटिंग बहुत ख़राब है, ओके, एन। अगर इंडिया में डे है तो कनाडा में नाइट है। अच्छा, इंडिया में डे है तो जापान में क्या होगा, जापान में होगा डे, ओके। मैक्सिको, मैक्सिको में होगी नाइट, ओके। एंड ऑस्ट्रेलिया में डे ही होगा, ओके। ब्राज़ील में नाइट होगी, साउथ अफ्रीका में वेल मॉर्निंग होगा। अगर डे टाइम है तो वहाँ पे भी नाइट ही होनी चाहिए। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि आपने कैसे पता चला लगाया। अगर हम लोग दिन में किसी कनाडा वाले को फ़ोन करना, वो आपको एक ही कनाडा, मेक्सिको या ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका में फ़ोन करना, वो लोग ऐसे बोलेंगे यार रात हो गई है, परेशान मत करो, सोने दो। और अगर आप जापान और ऑस्ट्रेलिया में फ़ोन करते हो तो आपका फ़ोन पिक कर लेंगे। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता कैसे चलेगा कि कोई कंट्री में डे है या नाइट है, ओके। अभी ना ऐसा एज्यूम कर लो, ये पूरा जो स्क्रीन है ना वो वर्ल्ड मैप है, ओके। एंड वर्ल्ड मैप में इंडिया कुछ समथिंग यहाँ पर होगा, ओके। आई थिंक मुझे मार्कर ले लेना चाहिए, ओके। अब इंडिया जो है वो समवेयर ओवर हियर यहाँ पर होगा। यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका हो गया, यहाँ पे आपका यूरोप जैसा हो गया, इतने में कुछ अफ्रीका आता है, यहाँ पे कुछ लटकता फुटकता ऑस्ट्रेलिया होगा, और यहाँ पर पूरा ये एशिया होगा जिसमें इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है, ओके। तो एक बात याद रखना फ्रेंड्स कि सबसे पहले जो डे जो स्टार्ट होता है ना, वो यहाँ से समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे मैंने एन लिखा है, न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड से स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे दिन होता है। तो अभी भी हम लोग सो रहे हैं, एंड जब इंडिया में दिन होगा ना तो वहाँ पे मतलब अभी इवनिंग चल रही होगी, मतलब दिन तो है, पर बाकी के जो अर्थ के ये वाला पार्ट है ना जो मैं पूरा सेट कर रहा हूँ, इस पार्ट में यूजुअली क्या होगा कि नाइट होगी। तो सिंपल सा लॉजिक है। इंडिया से मैं कुछ ज़्यादा ही कलरफुल हो गया, इंडिया से जो इस तरफ वाली कंट्री है ना, जो इस तरफ के एरो वाली कंट्री है, वहाँ पे डे होगा। एंड इंडिया से जो इस तरफ वाले कंट्री हैं जो वेस्टर्न साइड में आते हैं, वहाँ पे नाइट होगी। तो कंट्रीज फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया डे, कंट्रीज फ्रॉम द नाउ ये ईस्टर्न कंट्रीज है, मतलब ये आई थिंक हाँ, कंट्री के इस तरफ वाले जो कंट्रीज हैं वहाँ पर अभी डे होगा ईस्टर्न साइड में, और ये जो ये साइड वाली कंट्री है डेट जो वेस्ट में आते हैं, यहाँ पर नाइट होगी।
काफ़ी कलरफुल स्लाइड। अरे हाँ, चलो गया। सो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होते हुए, ओके, फटाफट एक बार क्विक रिकैप कर लें। मोशन ऑफ द अर्थ, बचपन में हम सभी लोगों ने टॉप खेला हुआ है, लट्टू खेला हुआ है, भंबीड़ा खेला हुआ है, ओके, जो गोल गोल घूमता है अपने परफेक्ट पोजीशन में। वैसे हम लोगों ने इस टाइप के झूले भी झूले हुए हैं जो एक ही जगह गोल गोल घूमते हैं। फ्रेंड्स, वैसे ही हमारा अर्थ भी गोल गोल घूमता है, एंड डेट मोशन इज कॉल्ड रोटेशन। और वो उसका एक इमेजनरी पाथ होता है। नॉट ओनली अर्थ, लेकिन सोलर फैमिली के सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं, एंड ये उनका इमेजनरी पाथ होता है। आगे इन्हें हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। अर्थ के दो मूवमेंट हैं, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जो आपको एक स्मॉल बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, जस्ट आपके झूले के बगल में। फिर आपको यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई थी जिसमें आपको इसमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग सनराइज होता है तो हमारा जो सनराइज अगर इससे होता है तो हमारा शेडो वेस्ट में होगा, और अगर सन बिल्कुल ओवरहेड होगा तो हमारा जो शेडो होगा हमारे लेग्स के नीचे होगा। सन अगर वेस्ट में होगा तो हमारा शेडो ईस्ट में फॉल होगा, मतलब सन के ऑपोजिट साइड में हमेशा शेडो फॉर्म किया जाता है। और आपको एक एक्टिविटी में ये बताना था कि कितनी आपको शेडो की लेंथ है। आगे अर्थ की जो रोटेशन है उसकी स्पीड है 1670 किलोमीटर इक्वेटर से। इक्वेटर जो अर्थ के सेंटर में से लाइन पास ऑन होती है, एंड अर्थ को टोटल जो रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगते हैं। डे एंड नाइट क्यों फाउंड होते हैं, एंड डे एंड नाइट क्या क्या कारण है? वेल, रोटेशन है। अब सन के सामने वाला पार्ट जो फेस करता है वहाँ पे हमेशा क्या होता है? डे होता है, एंड अपोजिट साइड में हमेशा नाइट होती है, जो हम लोगों ने टॉर्च और ग्लोब वाली एक्टिविटी से कम्प्लीटली सीख लिया है। फिर जो अर्थ गोल गोल घूमता रहता है, रोटेशन करता रहता है, तो कुछ पार्ट जो पहले डार्क में था वो लाइट में आ गया, डेट मीन्स वहाँ पे डे हो गया, और जो लाइट वाला पार्ट था वो डार्क में चला गया, डेट मीन्स वहाँ पे नाइट हो गई। तो ये बाई रोटेशन हर कंट्री को डे एंड नाइट चलता ही रहता है। एंड जहाँ पे लास्ट में हमने ये देखा था इस एक्टिविटी में कि जो अर्थ के ये वाले पार्ट हैं, इंडिया से जो ईस्ट की तरफ जो कंट्री आते हैं वहाँ पे यूजुअली डे हो चुके हैं, एंड वहाँ पे शाम हो गई है, एंड इंडिया से जो वेस्ट की कंट्री है वहाँ पर यूजुअली नाइट होगी। एक थिंक लास्ट में कुछ लिखा हुआ है, व्हाट डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, हाउ डज द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, एंड व्हाट इज इट कॉन्सिक्वेंसेस। तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं जब अर्थ गोल गोल घूमता है सन के? तो वो आएगा रिवॉल्यूशन में, जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन यू गाइस आर डूइंग वेल, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड बाय।